Good evening everyone. Today in the very morning when I woke up, news देखा, पहला news was Hezbollah Chief caught killed in an airstrike and Hassan Nasrallah is no more. मुझे आज भी याद है जब मैं टेररिज्म की क्लास कर रहा था, आई हैव टेकन डिप्लोमा इन टेररिज्म, यूएसए में मैंने टेररिज्म के ऊपर कोर्स किया था. सो हसन नसरुल्लाह वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर बिकॉज when it comes to the whole history of Middle East, you cannot talk about the Middle East without talking about the significance of Hezbollah, because Hezbollah is a parallel force and killing of Hassan Nasrallah is like killing of a head of a state. Though I would not say, though I would not agree to that statement, but I'm just talking about the kind of power which he was enjoying, the kind of authority he willed over Lebanon. So you can say that like he was someone like head of state. Okay, so killing him is like an end of a chapter, a big chapter, and at the same time there would be wider consequences of it. So already I have taken 2 sessions on Israel-Lebanon war. You can watch it later on, but let us understand what would be the implication of killing of Mr. Hassan Nasrallah on the wider region. ये समझने की जरूरत है. What would happen? A conflict would occur out, or something else would happen. So we'll analyze in this video. Okay. Hello Vijay. So ये नहीं चेंज हो रहा है. Do it fast. Good evening Vijay. So we need to understand, अभी जैसे मैंने बताया कि जब भी आप टेररिज्म का कोई भी कोर्स करोगे, चाहे इंडिया और एनीवेयर एल्स, सो हसन नसरल्लाह वाज ऑलवेज एन इंपॉर्टेंट फिगर. तो उनके बारे में जनरली कोई भी वर्ल्ड का जो टेररिज्म का कोर्स है, दैट कैन नॉट बी कंप्लीटेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ लेबनान, बिकॉज ये जो पूरा का पूरा रीजन, इफ यू विल सी मिडिल ईस्ट का जो पूरा रीजन है, यहाँ हमेशा कोई ना कोई इश्यूज होता ही रहता है. It's like a permanent unstable zone, right? So consequently we need to understand ki what would be the implication of this. You were Hassan Nasrallah. So this is the report which I read in the morning. Telegraph का ये message था, how Israel went after Hezbollah chain of command and white matters. ये Telegraph news में आया था. CNN का ये आज का headline है, Nasrallah claimed by Israel to have been killed in airstrike oversaw Hezbollah's rise into a regional force. So we'll also analyze, हम लोग देखेंगे Hezbollah का significance also, but before that पहले ये समझते हैं what happened. IDF Israeli Defense Force का morning में एक tweet आता है that Hassan Nasrallah is no more, he is now not going to disturb Israel. So in the last 1 month, when you would look at the chronology of event, what you would understand, already tensions were running high between Israel and Lebanon. Israel और Lebanon के बीच tensions बहुत ज़्यादा high थे. Already I explained you about the Pazer explosion. Before Pazer explosion, I already talked about one armed force commander who was also killed. In addition to that, there were already bombarding in southern Lebanon, right? So actually, Israel launched an operation called Operation. Again, it is not working. Muzaffar. ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो, ठीक है. सो अंडर ऑपरेशन नॉर्दर्न एरो continuously Israel was bombarding against Lebanon, and specifically the target was Hezbollah का target था, and ultimately that they have achieved that target by killing Mr. Nasrallah. तो पहले समझते हैं कि क्या क्या issues था. Why Hassan Nasrallah killing matters for Israel? क्यों his killing was important for Israel? Why it matters? So first important reason is
कि हेजबुल्ला व्हेन इट गॉट एस्टैब्लिश्ड, अगर प्रीवियस वीडियो आपने देखा होगा वेयर आई ट्रेस द ऑरिजिन ऑफ Hezbollah, so already I explained 2-3 things. मैंने बोला था कि लेबनान में there was already a civil war that was going on, and in between that civil war even Israel got involved later on in 1982. By 1982 what happened, ये जो southern लेबनान का जो region देख रहे हो, that was occupied by Israel. So in that particular scenario, during that civil war, Hezbollah arose in 1982. लेकिन जब origin हुआ था निखिल रश्मि, so it was just a disorganized force. कुछ लोगों का forces था who wanted proper treatment of people who were residing in Palestine. Okay, तो Hezbollah का literal meaning जो होता है वो है the party of, हाँ बिल्कुल करवाऊंगा विजय, not this time. मैं बॉर्डर का ही मैपिंग नहीं, यहां पर कॉन्सेप्ट है बाबू ब्लू लाइन का, ग्रीन लाइन का, दैट ऑल्सो आई विल बी डिस्कसिंग. मैं अपना जब मैपिंग क्लास लूंगा, सो इट इज ऑलरेडी इन माई माइंड. राइट नाउ वी आर ओनली डीलिंग विथ द इंप्लीकेशन ऑफ दिस इवेंट ऑन वाइडर रीजन. ठीक है, अभी यहां पे मैपिंग नहीं कराऊंगा विजय, व्हाट आई विल बी डूइंग समथिंग एल्स ओवर हियर. तो पहले समझो कि क्या हुआ. सो हेजबुल्ला वाज लाइक अ डिसओरिएंटेड फोर्स. उस समय हेजबुल्ला को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पैरामिलिट्री फोर्सेस बनाने का अगर किसी को क्रेडिट जाता है, दैट कुड बी गिवन टू हसन नसरुल्लाह. सेकेंड थिंग, ये जो ग्रुप बना था विद द हेल्प ऑफ ईरान, this group came into being in 1982, but by 2000 it established itself as a formidable force directly challenging इजराइल. अभी मैंने बोला कि इजराइल साउदर्न लेबनान का कुछ पार्ट को कब्जा कर लिया था. सो इजराइलीज वर थ्रोन आउट ऑफ साउदर्न इजराइल एंड इट वाज बिकॉज ऑफ हसन नसरुल्लाह एफर्ट. कॉन्टिन्यूअसली इन 2006, अगर पिछला लेक्चर आप लोग को याद होगा, इन 2006, ओके, इन 2006, तो उस केस में 2006 में मैंने, अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने ये बात बोला था कि हसन नसरुल्लाह जो है उस समय ही इमर्ज्ड एज लाइक द प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम. डू यू रिमेंबर? तो दैट वाज द बेसिक रीजन. और जब पेजर अटैक हुआ था उसका कॉन्सिक्वेंसेज में मैंने ये बात बोला था, अगर याद होगा तुम लोगों को, कि वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज वुड बी देयर वुड बी टू मच नाउ फोर्स अपॉन हसन नसरुल्लाह टू टेक सम retaliatory action. Are you getting? So he replaced his predecessors and mentor Abbas Musabi जो थे, there were two people who played an instrumental role in establishment of Hezbollah and one was Abbas Musabi. तो अब्बास मुसाबी को भी इजराइल वालों ने 1992 में हेलीकॉप्टर अटैक में 1992 में हेलीकॉप्टर अटैक में इनको भी मरवा दिया था इजरायली ने हेलीकॉप्टर स्ट्राइक के साथ. एंड देन ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट. यहां पर रेखा जो बीपीएससी के रिस्पेक्ट में बाबू आएगा वो क्वेश्चंस जनरली मैपिंग से ही आएगा. मैप से आ सकता है या इजराइल के आसपास बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन है, मेडिटेरेनियन सी, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं. रेखा इतना डिटेल में नहीं आएगा. नेक्स्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट नॉट फ्रॉम जस्ट फ्रॉम लाइक बीपीएससी परस्पेक्टिव, यूपीएससी परस्पेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड मोर इंपॉर्टेंटली इन जनरल ऑल्सो यू शुड बी नोइंग. ठीक है. सो व्हाई हसन नसरुल्लाह किलिंग मैटर्स फॉर इजराइल? अभी मैंने बताया कि it has seen the transformation of a ragtag group, एक छोटा मोटा unorganized disorganized group को it has seen into an organization that mounted a concerted campaign to drive out Israeli occupation. Israelis को वहां से भगाने में एक ऑर्गेनाइजेशन जो कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन था, छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन था, उसको इस लेवल पर ये ले गए हसन नसरुल्लाह और वहां से ही प्लेड अ concerted attempt to get rid of Israel. That was the most important contribution of Hassan Nasrallah. Second is this Lebanese militant group became a regional fighting force under Nasrallah. पहले बताया कि एक नॉर्मल सा फोर्स बनी थी. They were getting support from Iran, सीरिया एंड सम अदर कंट्रीज. कुछ और कंट्रीज थे उसमें, कुछ यमेन का भी पार्ट वहां जाता था, तो इन लोगों का सपोर्ट था. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम it itself emerged as a separate regional important regional force. Okay, next is he led the growth of Hezbollah forces. His fighters and reservists are thought to number 1 lakh. करीब हेजबुल्ला एक
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं हिजबुल्लाह को ऑलरेडी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर चुके हैं, बट ही वाज, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज हैविंग 1 लाख फाइटर, एंड दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन व्हाई ही गॉट easily killed. देखो, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेक्रेसी. जब आप ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, सो व्हाट वुड हैपन, मैं टेररिज्म का अपना एक्सपीरियंस क्लास का बताता हूं, एंड आई डिड सम रिसर्च पेपर आल्सो. सो जब ज्यादा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है, सो व्हाट एग्जैक्टली हैपन, इट बिकम्स इजी फॉर एनी इंटेलिजेंस एजेंसी टू इन्फेस्ट समवन इनसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन. जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज्यादा खतरा है टॉप लीडर्स पे. ओके, एंड दिस हैज एक्चुअली हैपेंड. इतना आसानी से मारना जो था हिजबुल्लाह, द वे ही वाज किल्ड, दैट एक्चुअली पॉइंट आउट टुवर्ड्स दैट इन्फेस्टेशन. कोई ना कोई, यस गो हेड. लेबनान, नो, ऑब्वियस बात है, लेबनान वाले क्यों उसको करेंगे? वेस्टर्न कंट्रीज, आई एम सेइंग, मोस्ट ऑफ द यूएसए ट्रीट देम, यूके ट्रीट देम एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. नहीं, ईरान तो इसको, ईरान इज लाइक इट्स अ प्रॉक्सी फॉर ईरान. रियल रीजन मैंने याद है 1982 में बताया था कि जो ईरान था, ईरान डिड नॉट वांट टू डायरेक्टली इंटरवीन, क्योंकि उसको लगता था कि यूएसए वुड अटैक ऑन ईरान. सो ईरान वांटेड टू अवॉइड डायरेक्ट कॉन्फ्लैग्रेशन विद यूएसए, और इजराइल और सीरिया आल्सो डिड नॉट वांट डायरेक्ट वॉर. तो उसी के, यस, दे हैव अलाउड हिजबुल्लाह टू इमर्ज एज अ प्रॉक्सी ग्रुप. इस ग्रुप को दे वर फंडिंग, दे वर प्रोवाइडिंग आर्म्स एंड एम्युनिशन, और इनका सिंपल गोल क्या था? गोल ये था कि वहां पे इजराइल से लड़ाई करें. ठीक है. सो रिसेंट कॉन्फ्लैग्रेशन, अभी मैंने बताया कि हमास का जो लास्ट ईयर अटैक हुआ अक्टूबर 7 को, याद है ना, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंटली the way Israeli responded, massive retaliation they did in Hamas and the Gaza region, जो Gaza region पे more than 40,000 people have been killed. So since then there was like tension that was rising between Hezbollah and Israel. Hezbollah was again and again saying कि भैया Israel आप withdraw करो, and Hezbollah started supporting even Hamas in Gaza. Okay, उनको arm support पहुंचा रहा था, पैसे का support हो रहा था. In addition, Hezbollah also started targeting many of the Israeli locations. So that was happening. So that was the one thing. Second, अभी बताया कि फुआद सुकर जो हैं, he was already killed by Israel on 30 July 2024. देखो, कुछ लगातार attacks were happening. फुआद सुकर was killed on 30 July. Second important incident that happened was Ibrahim Aqil. Ibrahim Aqil was one of the important leader of Hezbollah. अभी मैं chain of command इनका दिखाऊंगा कौन कौन है. Third, recent pager and mobile phone attacks. And fourth, bombarding on southern Lebanon. So the tension was already growing and it was visible. Now, अभी पिछले 5 दिन में it was already giving a sign of a full-fledged war between Israel and Lebanon. And the way it has turned out, हो सकता है कि war is a possibility. हो सकता है कि ईरान में also directly enter into the conflict, because अभी तुरंत का न्यूज अभी मैंने पढ़ा कि ईरान के जो रिलीजियस सुप्रीम लीडर है मिस्टर खमैनी हैज बीन मूव्ड टू अ सेफ लोकेशन, और वहां से दे आर डूइंग मीटिंग. देखो आगे क्या एक्शन होता है. सो विल सी. अभी तुरंत का न्यूज है 5 मिनट पहले का. हिजबुल्लाह का चेन ऑफ कमांड इस तरीके से है. हसन नसरुल्लाह वाज द चीफ, नाउ ही इज डेड. सो ही वाज द चीफ. दीज वर द सेकेंड टीयर लीडरशिप. फुआद सुकर को अभी बताया कि जुलाई में मारे गए, सितंबर में मारे गए इब्राहिम अकील, एंड द थर्ड पर्सन अली कराकल. इसका फोटोग्राफ अभी किसी के पास अवेलेबल नहीं है, बट there are chances that he was also with Hassan Nasrallah in that particular bomb attack जिसमें हसन नसरल्ला मारे गए हैं, इनकी बेटी मारी गई है, and there are chances कि even Ali Karakal is now no more, he is also dead. Now coming to third tier में Wissam al-Tabil, he was already killed. Abu Hassan Samir killed. Only one person is alive right now, Abu Ali Rida. अगर उस बंकर में वो भी रहा तो we do not know. I think even then first tier, second tier, third tier all are destroyed. But what we have gotten confirmation until now is कि Hassan Nasrallah is dead,
his daughter is dead, and the same time Ali Karakal is dead. So first tier, two tier, all leaders have been obliterated. थर्ड टियर में एक लीडर का अभी तक कंफर्मेशन आया नहीं है वेदर ही इज अलाइव और स्टिल लिविंग. ठीक है, सो दैट्स द वन थिंग. नेक्स्ट इज इंप्लीकेशन ऑन ऑफ हसन नसरल्ला किलिंग. इसका इंप्लीकेशन क्या होगा? ये जेरूशलम पोस्ट का आज का आर्टिकल है. द नसरल्ला असैसिनेशन अटेम्प्ट, व्हाट आर द रिस्क, consequences and the new opportunities for the Middle East. So let us understand what could be the implication. सबसे पहला implication अभी मैंने बताया कि the whole first tier of Hezbollah and second tier of Hezbollah have been obliterated. तो इसका मतलब कि Hezbollah as a force, Hezbollah as a regional force, so there would be question mark on the overall strength of Hezbollah. कोई लीडर ही नहीं है. When an organization become leaderless, so that's a very difficult, means that becomes very difficult to sustain it or run it. Are you getting? So first important implication is crippling of Hezbollah. Second is a risk of a border conflict. Border conflict किनके किनके बीच हो सकता है? इजराइल, लेबनान, उधर से यमन और इधर से ईरान. देयर इज अ हायर चांसेस. तो पहला जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, जो मोस्ट एक्सट्रीम सिनेरियो में इट इन्वॉल्व्स ईरान अनलिसिंग हेजबुल्ला. ईरान जो है, क्योंकि अब तो कोई वहां लीडर है नहीं, सो ईरान डायरेक्टली वुड बी लीडिंग हेजबुल्ला एज वेल एज द हुतीज, यमन वाले हुतीज, एंड allowing them to launch an extensive missile and drone attack on Israel home front. So अब हेजबुल्ला को और हुतीज को दोनों को ईरान बोल सकता है कि whatever you want to do you can do, go ahead. पहले कुछ कंट्रोल लगाए हुए था ईरान, so now they can do. This is one of the possibility. Second possibility is Iran may get involved in the war itself. ईरान खुद ही उस वॉर में कूद जाए. दैट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी. इन एन इवन मोर सीवियर सिनेरियो, ईरान इटसेल्फ कुड ज्वाइन द कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली विथ स्ट्राइक्स फ्रॉम इट्स टेरिटरी. लेकिन ये पॉसिबिलिटी अभी भी कम लग रहा है, बिकॉज ईरान डज नॉट वांट अ बिगर कॉन्फ्लिग्रेशन. ऑलरेडी ईरान जो है, Iran has lost his president very recently, and Iran is also facing multiple issues at domestic front. Okay. This is what I'm saying, or that could be the thing, but at the same time, right now Iran has also gotten support of multiple countries. It may also leads to bigger instability. Let me give you one example. Iran may get support of Russia. Iran may get support of, though directly they would not come, but Iran may get support of even China. China is looking for an opportunity for, involving USA in different conflicts, so that USA doesn't give too much attention to South China Sea. जितना ज्यादा रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होगा उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी वुड बी चाइना. ईरान और रशिया यूक्रेन वॉर में रशिया कमजोर हो रहा है, वो भी बेनिफिट कर रहा है चाइना को, एंड एट द सेम टाइम बिकॉज यूएसए इज इंगेज्ड इन रशिया यूक्रेन वॉर, दैट इज ऑल्सो बेनिफिटिंग चाइना. क्योंकि अदरवाइज चाइना मीन्स यूएसए वुड हैव गिवन मोर ऑफ इट्स एनर्जी इन साउथ चाइना सी. सेकेंड थिंग, if Middle East, if there would be destabilization, उस केस में again USA need to focus more on the Middle East. Again that would be a benefit for China. तो ये समझो, अगर ईरान इन्वॉल्व होता है, so it is not good for India, not good for USA, not good for the wider region. Okay, so second plausible है कि जो टारगेटेड रिटेलिएशन बाय मेंबर्स ऑफ द एक्सिस ऑफ एविल, मतलब कि ये जो कंट्रीज हैं, ईरान हुआ, सीरिया हुआ, यमन हुआ, रशिया हुआ, ऐसे एक्सिस ऑफ एविल जो है, इट्स अ नाइस स्पीच बाय जॉर्ज डब्ल्यू बुश, जहां उन्होंने 3 कंट्रीज को ऐड किया था, नॉर्थ कोरिया को, ईरान को, ये सब जो कंट्रीज हैं, सीरिया को, इराक को, इनको एक्सिस ऑफ एविल में रखा था. किसने? जॉर्ज बुश ने. 3 कंट्री, ईरान, इराक और नॉर्थ कोरिया. लेकिन अब उसमें कुछ लोग जो हैं उसको एक्सपैंडेड एक्सिस ऑफ एविल कहते हैं, उसमें सीरिया को भी ऐड करते हैं, यमन को भी करते हैं, रशिया को भी करते हैं. सो दैट कुड बी अनदर पॉसिबिलिटी कि हो सकता है देयर कुड बी अ रिटेलिएशन बाय देम एंड मे फोर्स इजराइल, ईरान एंड द मिडिल ईस्ट टू कम टुगेदर. दिस इज द फोर्थ प्रोबेबिलिटी. दिस इज द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो. ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो में क्या होगा कि अब ईरान को लगेगा कि नाउ
this policy would not work, इजराइल को भी लगेगा, and it may force all to come together, जिसकी बात तुम कर रहे थे, diplomacy, means diplomacy would bring them together and they may chart out some new course for themselves. ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर, ज्यादातर चीजें आप लोग को पता चल गई होगी. एंड मैप का जहां तक बात है विजय, सो आई विल बी डूइंग मैपिंग ऑल्सो. ये पूरा का पूरा जब मैप का लोकेशन मैं करूंगा तो वहां पे आई विल हाईलाइट द बॉर्डर्स ऑल्सो बिटवीन इजराइल लेबनान, जो बॉर्डर का इश्यूज है दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. टेक केयर. And one more thing, tomorrow at 4 o'clock, see you with some important announcement. कल शाम में 4 बजे जो भी online communities हैं, please do come and enjoy the